Hello everyone. Today I'm here to present physically, mentally, and socially challenged children, or we can say handicapped children. Handicapped children means which are physically, mentally, and socially is not well, or there is any abnormality, or there is any problem. Okay, so handicapped children, the handicapped child is one who deviates from normal health status either physically, mentally, or socially and require special care, treatment, and education. क्लियर. हैंडीकैप चिल्ड्रन क्या होते हैं आपके, जिनको स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है. अगर हम कंपेयर करें एक नॉर्मल चिल्ड्रंस में और हैंडीकैप चिल्ड्रंस में, तो जो नॉर्मल चिल्ड्रंस होते हैं दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर्स, लेकिन हैंडीकैप चिल्ड्रंस क्या होते हैं, दे आर रिक्वायर स्पेशल केयर, ट्रीटमेंट एंड एजुकेशन. सो according to WHO, the sequence of events leading of disability and handicapped condition are as follows. Okay, so first is injury or disease, the next is impairment, then disability and handicapped. Means if there is any injury or disease condition that it can cause impairment. Impairment is what we can define as any loss or abnormality of psychological, physiological or anatomical structure or function. ओके, अगर उसके फिजियोलॉजिकल में, साइकोलॉजिकल में और अनाटमिकल फंक्शन स्ट्रक्चर्स में क्या आ रहा है, कोई एबनॉर्मलिटीज़ है, दैट इज़ इम्पेयरमेंट. फॉर एग्जांपल लॉस ऑफ विज़न, लॉस ऑफ हेयरिंग एक्सेट्रा. The next is disability. Disability is what, if impairment is there then it can cause the disability. Disability is it develops as the consequence of impairment, and it is the inability to carry out certain activities which are considered as normal for the age and sex. Okay, so for example we can say loss of limbs result in a inability to walk. Okay, then handicapped. Then handicapped is a children refers to those with presence of impairment of other circumstances that are like to interfere with normal growth and development or with capacity to learn. So these are the condition as a follow in physically, mentally or socially challenged children. Okay, impairment, disability, handicapped we have already discussed. So impairment is any loss of abnormal psychological and socials, disability and handicapped. So there are some classification of handicapped children. The first one is physically handicapped, the next is mentally handicapped, and the next is socially handicapped. Okay, so firstly we will discuss about the physically handicapped children. physically मतलब जो क्या होते हैं, physically handicapped होते हैं. For example blind, deaf, dumb, crippled child. So blind, according to blindness, according to WHO, the inability to count finger in daylight from a distance of 3 meters is defined as a blindness. Okay, so it comes under the physical handicapped. So many problem faced by the blind child, like problem of attachment, because due to lack of vision they can't attach with others, and unable to use hand as organ of perception, and dependence on parents and caregivers. Obviously if the child having difficulty in vision, so they are totally dependent on parents and caregivers. Behavioral problems may be there, and less social interaction and less playing activity due to blindness. Okay,
So how we can prevent of blindness? So provide good antenatal care. We have to provide good antenatal care during pregnancy, immunization, measles and rubella, genetic counseling and screening. We can counsel the parents, okay, so prevent from infection, because there are so many cause which can uh, cause a blindness, so we have to prevent from those cause. So prevent preterm birth and provide excellent neonatal care to the child, okay. You We can give the vitamin A supplements, health education about eye safety, personal hygiene and nutritional for health promotion and treatment of cause of child blindness, okay, like रेटिनोपैथी हो गया आपका, कैटरेक्ट हो गया, ग्लूकोमा हो गया। तो हमें क्या करना है, एजुकेट करना है फैमिली मेम्बर्स को, स्क्रीनिंग करनी है, जेनेटिक काउंसलिंग करनी है, ओके, विटामिन ए सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करने हैं। द नेक्स्ट इज deafness. The deafness is a person who is not able to hear as well as someone with normal hearing, okay. So it can affect one ear or both ears and leads to difficulty in hearing conversational speech or loud sound, okay. इसमें क्या होता है, आपका जो पर्सन होता है वो क्या नहीं कर सकता है, सुन नहीं सकता है एज समवन विथ नॉर्मल हेयरिंग। जैसे हम नॉर्मल जो हेयरिंग होती है वो यही, डेफनेस में क्या होता है, इसको ये नॉर्मली क्या नहीं हो पाता है, नॉट एबल टू हेयर, ओके। So there are some impact of hearing loss. The first one is functional impact may be there, poor academic performance because due to hearing loss, okay. सो सोशल एंड इमोशनल इम्पैक्ट भी पड़ सकता है उस पर। सोशल एंड इमोशनल इम्पैक्ट कैसे हो सकता है, लाइक अगर हम दोनों को कंपेयर करेंगे, डेफ चिल्ड्रन को और एक नॉर्मल चिल्ड्रन को, तो क्या होगा, उनकी जो सोशल एक्टिविटीज़ होगी वो डिफरेंट होंगी। इमोशनल इम्पैक्ट पड़ेगा उस चिल्ड्रन पे जो जो डेफ होगा, ठीक है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट में भी देयर। सो दीज आर द इम्पैक्ट ऑफ हेयरिंग लॉस। मैनेजमेंट कैसे करेंगे हम, ठीक है। आपको पता है जैसे ब्लाइंड होते हैं तो उनके लिए अलग लैंग्वेज होती है, साइन लैंग्वेज होती है, ओके। सो हेयरिंग डिवाइस होते हैं आपके, एड असिस्टिव लिसनिंग डिवाइस एंड कॉकलर इम्प्लांट करते हैं हम, लाइक दिस, ओके। सो लिप रीडिंग स्किल्स आपने देखा होगा, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स भी आते हैं उसमें, जो लोग सुन नहीं सकते उनके लिए क्या होती है, लिप रीडिंग्स उससे वो करते ताकि वो क्या करे, समझ सके, ओके। स्पीच थेरेपी एंड यूज ऑफ रिटन प्रिंटेड टेक्निक्स, ओके। सो दीज आर द मैनेजमेंट। द नेक्स्ट इज स्पीच हैंडीकैप्ड। स्पीच हैंडीकैप्ड मीन्स impairment of speech or sound production, fluency, voice or language which significantly affect a child's educational program or their social, emotional or vocational development, okay। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका impairment हो रहा है किसमें, स्पीच में, साउंड प्रोडक्शन में, फ्लुएंसी में, ओके। सो इम्पैक्ट क्या होता है आपका, इम्पैक्ट ऑफ स्पीच, इम्पेयरमेंट होगा आपका, लाइक पुअर कम्युनिकेशन स्किल होगा। क्यों होगा पुअर कम्युनिकेशन स्किल, बिकॉज आप प्रॉपरली क्या नहीं होगा, आपकी वॉइस क्या होगी, स्लर्ड हो गया, आप प्रॉपरली प्रोनाउंस नहीं कर पाएंगे वर्ड्स को, तो बिकॉज ऑफ दैट देयर इज़ अ पुअर कम्युनिकेशन स्किल। लेस सोशल इंटरेक्शन होगा। क्यों होगा लेस सोशल इंटरेक्शन, क्योंकि वो क्या करेगा, इंटरेक्ट करने में क्या करेगा, हेजिटेट करेगा। सो बिहेवियर प्रॉब्लम आर देयर, चिल्ड्रन में फील शेम, ओके, एम्बैरसमेंट्स, फ्रस्ट्रेशन, एंगर एंड डिप्रेशन एज अ रिजल्ट ऑफ स्पीच इम्पेयरमेंट, ओके। तो ये बिहेवियरल चेंजेस आएंगे चिल्ड्रन में, वो क्या करेगा, शेम फील करेगा। क्यों करेगा, उसे लगेगा कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ तो सामने वाला क्या सोचेगा कि ये कैसे बात करता है, उसको एम्बैरसमेंट होगा, फ्रस्ट्रेशन होगी उसको। सो पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस। सो दीज आर द इम्पैक्ट ऑफ स्पीच। मैनेजमेंट क्या करोगे आप,
First of all, we have to early identification of speech impairment, elimination of hearing impairment, and medical and surgical intervention for underlying. If there is any problem, then we can do the medical and surgical intervention. साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करेंगे हम उसकी. एंड अवॉइड मेकिंग फन ऑफ देयर वॉइस और स्पीच. क्यों करेंगे हम अवॉइड मेकिंग फन ऑफ देयर? बिकॉज वो क्या करता है अपने आप को, क्योंकि उसके आपने देखा उसके बिहेवियर में क्या आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं. तो हमें क्या नहीं करना है, उसका मजाक नहीं उड़ाना है. हमें उसको क्या करना है, वॉइस और स्पीच थेरेपी प्रोवाइड करनी है. फिजिकल थेरेपी वी हैव टू प्रोवाइड देम, एंड कॉग्निटिव रिहैबिलिटेशन. सो दीज आर द मैनेजमेंट ऑफ स्पीच therapy. Okay, next is orthopedically handicapped. Orthopedically handicapped means disability occur when the movement in over body are affected due to disease, injury, any absence or deformities in the joints, bone, muscles, or an injury in nervous system. Okay, if locomotor disability is there, locomotor disability means disability of the bones, joint or muscles leading to substantial restriction of the movement of the limbs. Okay, orthopedically handicapped में क्या हो रहा है, आपका बॉडी अफेक्टेड हो रही है किसी डिजीज़ की वजह से, किसी इंजरी की वजह से. ओके, या फिर कोई एनी जॉइंट्स में क्या है, एनी डिफॉर्मिटी है. ओके, दैट इज़ ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड. मैनेजमेंट कैसे करोगे आप? करेक्शन ऑफ डिफॉर्मिटीज़. इफ़ एनी डिफॉर्मिटीज़ इज़ देयर, देन वी विल करेक्ट देम, एंड वी विल करेक्शन ऑफ डिफॉर्मिटीज़. फिजिकल थेरेपी we will provide to the children, and the occupational therapy, massage therapy, we can do prosthetics. Okay, like this. And device for positional and mobility, like this. Devices for positioning and mobility, like these types of devices you can provide to the children, like canes, walker, crutches, wheelchairs, specialized exercise equipment, specialized chairs. Okay, desk and tables for proper posture and development. Okay, so the there are some physically famous disabled peoples like Stephen Hawking, Helen Keller और बीथोवन. ये आपके क्या है, फेमस डिसेबल पीपल है. इनमें डिसेबिलिटी होने के बावजूद भी ये क्या है, फेमस है. इन्होंने क्या नहीं किया, होप अपनी लूज नहीं करी. ठीक है, जो स्टीफन हॉकिंग था आपका, ये क्या है, आपका फेमस साइंटिस्ट ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड थियोरेटिकल फिजिक्स. ओके, और वो क्या है, आपने हिज रिसर्च फील्ड आर ब्लैक holes, theoretical cosmology, and quantum gravity. They all are not handicapped from the birth. Okay, so the next is your Helen Keller. ये भी क्या है आपकी, she was American author, political activist, and lecturer. And she was the first deaf blind person to earn a Bachelor of Art degree. ठीक है. The next is your Beethoven. ये क्या था आपका, he was a German composer and pianist of 18th century, and he was a crucial figure of Western classical music and remains one of the most influential composer of all time. Okay, so if from this we can motivate to others handicapped children, because they are very famous personalities. So the next अभी तक हम बात कर रहे थे फिजिकली हैंडीकैप्ड. नाउ द नेक्स्ट इज मेंटली हैंडीकैप्ड. मेंटली हैंडीकैप्ड मीन्स this a mental handicap is an impairment, is an individual ability to function cognitively, emotional or physical due to the presence of psychiatric condition, and the condition hinders someone's ability to perform a task
or prevents that person from engaging in activity without assistant. Okay. मेंटल हैंडीकैप्ड में क्या होता है, आपका इम्पेयरमेंट होता है आपका किसमें, इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू फंक्शन कॉग्निटिवली, इमोशनली और फिजिकली बिकॉज ऑफ presence of any psychiatric condition. The mentally handicapped children include like mental retardation, cerebral palsy. Mental retardation क्या होता है आपका, mental retardation is defined as a significantly sub-average general intellectual functioning resulting in associate with concurrent impairment in adaptive behavior which manifest during the developmental पीरियड. ओके. तो आपने जो देखा होगा, जो इनके ब्रेन की ग्रोथ होती है वो एक नॉर्मल चाइल्ड की तरह नहीं होती है. लेवल माइल्ड दैट इज़ 50 to 70%, मॉडरेट दैट इज़ 35 to 50%, सीवियर इज़ 20 to 35%, एट प्रोफाउंड इज़ लेस देन 20. दीज आर द लेवल ऑफ मेंटल रिटार्डेशन. सो मेंटल रिटार्डेशन चिल्ड्रन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, दे आर फेलियर टू अचीव डेवलपमेंटल माइलस्टोन. ओके, अकॉर्डिंग टू एज they don't achieve developmental milestone. Okay, so deficiency in cognitive functioning such as the inability to learn or meet. जो उनका thinking level होता है उसमें क्या आता है, deficiency आती है, वो easily क्या नहीं कर सकते, learn, they are unable to learn or meet of academic demands. And expressive or receptive language problem. सो सम अदर प्रॉब्लम्स आ जाए, साइकोमोटर स्किल डेफिशिएट होती है यहाँ पे, डिफ़िकल्टी परफॉर्मिंग सेल्फ केयर एक्टिविटीज़, वो अपनी सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ करने में क्या होते हैं, दे आर नॉट एबल. न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट होता है उनका, लाइक मेडिकल प्रॉब्लम होती है सच एज अ सीजर. एंड लो सेल्फ स्टीम लेवल होता है उनका, डिप्रेशन एंड लाइबल मूड्स एंड इरिटेबिलिटी व्हेन फ्रस्ट्रेटेड और अपसेट, एंड लैक ऑफ curiosity is there. Okay, treatment and modalities. हम उनका क्या कर सकते हैं, बिहेवियर मैनेजमेंट, बिहेवियरल थेरेपी वी कैन प्रोवाइड देम, एनवायरमेंटल सुपरविजन, मॉनिटरिंग द चाइल्ड डेवलपमेंटल नीड्स एंड प्रॉब्लम. ओके, प्रोग्राम कर सकते हैं हम उनके लिए ऑर्गेनाइज जैसे लाइक स्पीच, लैंग्वेज, कॉग्निटिव, साइकोमोटर, सोशल, सेल्फ केयर एंड ऑक्यूपेशनल स्किल. Family therapy we can provide. Firstly we have to educate the family member, and early intervention program for children younger than age 3 within a mental retardation, and provide day school to train the child in basic skills such as a bathing and feeding. हमें क्या करना है, उनको ट्रेंड करना है. Okay, cerebral palsy, you all are know because we have already discussed in previous class. So it is a disability that affect ability to control muscles caused by damage to the brain while the brain is developing. Okay, effects of cerebral palsy like abnormal muscle tone हो जाएगी उसकी, सीजर्स आएंगे, hearing loss, speech problems, vision problem, dental problem, bladder control problem. Okay, the last one is social handicapped children. Okay, social handicapped children मतलब may be defined as a child whose opportunities for healthy personality development and full unfolding of potentialities are hampered certain element in his social environment. Okay, मीन्स ड्यू टू सोशल इन्वायरमेंट की से वजह से क्या हो जाता है, उनमें इम्पेयरमेंट हो जाता है, such as a parental inadequacy, environmental deprivation like lack of learning opportunity and emotional disturbance की वजह से क्या हो जाती है, उनमें प्रॉब्लम अकर हो जाती है. सो which are the causes of socially and handicapped children, like parent inadequacy, loss of parents, poverty, lack of educational opportunity. Okay, so parental इन एडुकेसी, अगर पेरेंट्स की प्रॉपर इन सी नहीं होगी तो इसका अफेक्ट किस पे पड़ सकता है, हमारे चिल्ड्रंस पे पड़ सकता है. इफ़ लॉस ऑफ पेरेंट्स, अगर उसने अपने क्या किया, पेरेंट्स को लॉस कर दिया, तो जिसकी वजह से उन पे क्या हो सकता है, वो सोशली और इमोशनली क्या हो सकते हैं, डिस्टर्ब हो सकते हैं. इफ़ पॉवर्टी इज़ देयर एंड द लैक ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़.
सो हु आर द सोशली हैंडीकैप्ड, जिनको क्या किया जाता है, नेग्लेक्ट किया जाता है, लाइक जो ऑर्फन होते हैं या एडिक्टेड होते हैं या स्ट्रीट चिल्ड्रन होते हैं, चाइल्ड लेबर होते हैं, डेलिक्वेंट चाइल्ड होते हैं, दे आर सोशली हैंडीकैप्ड। ओके, ऑर्फन चिल्ड्रन, आपको पता है ऑर्फन क्या होता है आपका, जो क्या होते हैं, अच्छा, और एन और ऑर्फन इज़ अ चाइल्ड परमानेंटली बेरीव्ड ऑफ अ abandoned his or her parents and a child lost both parents is called orphan। जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं और जो अपने पेरेंट्स को क्या मीन्स लॉस्ट हो जाते हैं, जिनके पेरेंट्स दे डोंट हैव एनी सर्वाइविंग पेरेंट्स टू केयर फॉर हिम और हर, ओके, दे आर orphan children। Problem associated with orphans, there are so many problems which are associated with orphans, like developmental retardation is there, conduct and sleep problem, because वो क्या नहीं तो प्रॉपर नींद नहीं ले पाते हैं, पर्सनैलिटी प्रॉब्लम्स भी होती होंगी, बेड वेटिंग ड्यू टू इनएडिक्वेट ट्रेनिंग, एंड डिस्टर्बेंस इन ईटिंग, क्योंकि उनको प्रॉपर क्या नहीं मिल पाता है, फूड नहीं मिल पाता है, तो देयर इज़ अ डिस्टर्बेंस इन ईटिंग, एंड डिप्रेशन ड्यूरिंग एडल्टहुड भी आपकी जैसे एंटी सोशल्स प्रॉब्लम आ सकते हैं, उनको ड्रग एडिक्शन हो सकता है, एल्कोहलिज्म वो ले सकते हैं, बिकॉज उनके पेरेंट्स नहीं हो तो वो क्या कर सकते हैं, पेयर ग्रुप में या फिर किसी को देख के उनमें ये सारी चीज़ें क्या हो सकती है, वो अडेप्ट कर लेते हैं, मैरिटल प्रॉब्लम भी हो सकती है उनकी। ओके, द नेक्स्ट इज चाइल्ड नेग्लेक्ट। Child neglect is an ongoing failure to provide the right care and attention to a child's needs, including food and a safe environment, or to a child's emotional needs, including warmth, security and love। सपोज बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स में क्या होते हैं, चाइल्ड्स को नेग्लेक्ट किया जाता है, जिसकी वजह से उन पर क्या होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अ लैक ऑफ दीज थिंग्स आर लाइकली टू रिजल्ट इन सीरियस डैमेज टू द चाइल्ड्स हेल्थ और डेवलपमेंट। ओके, सो लाइक वो फिज़िकल इम्पैक्ट भी हो सकता है, मेडिकल भी हो सकता है, इमोशनल, एजुकेशनल और न्यूट्रिशनल। ओके, सो देयर आर कॉज many causes, because parental mental health problems such as a depression, if parents is depressed तो वो क्या करते हैं, अपने चिल्ड्रन को क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, मीन्स अगर वो कुछ कहना चाहते हैं तो उनकी वो सुनते नहीं है। अनेबल एंड एब्यूसिव रिलेशनशिप बिटवीन द पेरेंट्स, इसका भी क्या करते हैं, चिल्ड्रन पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। देन पेरेंटल हिस्ट्री एंड लर्न पेरेंटल बिहेवियर एंड लैक ऑफ नॉलेज ऑफ चिल्ड्रंस नीड्स। सम पेरेंट्स क्या होता है, उनको लैक ऑफ नॉलेज होता है कि चिल्ड्रन को हमें कैसे केयर प्रोवाइड करनी है, वो उनसे बात नहीं करते हैं, ठीक है। सो इनएबिलिटी टू प्लान, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस अबाउट द फ्यूचर, एंड जैसे अगर कोई टीनेजर मदर्स होती है, वो मीन्स मेंटली इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, तो मीन्स वो क्या करती है, चिल्ड्रंस को भी प्रॉपर गाइडेंस नहीं दे पाएगी। अल्कोहल एंड ड्रग एब्यूज इन केयर गिवर्स, इफ़ एनी अनएम्प्लॉयमेंट पेरेंट्स इज़ देयर, तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो उनको स्ट्रेस होगा, वो स्ट्रेस किस पे निकलेगा, बच्चों पे निकलेगा। पॉवर्टी है, वो प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं दे पाते हैं अपने चिल्ड्रन को। अलार्ज, अगर बहुत सारे बच्चे हैं तो इन सारे बच्चों को इक्वली वो क्या नहीं कर पाते हैं, ट्रीट नहीं कर पाते हैं। ओके, और डोमेस्टिक वायलेंस, अगर घर में क्या होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो इससे बच्चों पे भी क्या पड़ता है, वो इमोशनली क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं। ओके, देयर आर कंसिक्वेंसेस ऑफ नेग्लेक्ट, डेवलपमेंट डिले, सोशलाइज, उनका डेवलपमेंट क्या होता है, डिले हो जाता है, वो सोशली क्या नहीं हो पाते, किसी से इंटरेक्ट नहीं हो पाते हैं, उनका फिजिकल और मेंटल ग्रोथ क्या होती है, डिले होती है। एक्सपीरियंस एक्सटेंडेड poverty or unemployment, difficulty in making friends because due to a lack of confidence or lack of interaction। मैनेजमेंट कैसे करोगे आप, पेरेंट्स को क्या करना है, ट्रीटमेंट, सब्सटेंस अब्यूज़ का ट्रीटमेंट देना है, डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम फाइंड आउट करनी है उनकी, अगर लो सेल्फ स्टीम है तो उनको क्या करना है, कॉन्फिडेंस देना है, उनको एजुकेट करना है। ओके, रियलाइज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग द चाइल्ड, उनको रियलाइज़ करवाना है, एजुकेटिंग एंड हेल्पिंग द पेरेंट्स टू करेक्ट देयर एरोनियस थिंकिंग एंड बिहेवियर पेरेंटिंग स्किल।
फॉर चाइल्ड, हमें क्या करना है, चाइल्ड सेंटर इंटरवेंशन इंक्लूड पीडियाट्रिक केयर करनी है उसकी, मॉनिटरिंग बिहेवियरल एंड मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट वी हैव टू प्रोवाइड टू द चाइल्ड। बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, तो वो क्या करना है, प्रोवाइड स्टिमुलेशन प्रोग्राम टू इमोशनली नेग्लेक्टेड चाइल्ड एंड डेवलप टाइमली एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट और प्लेस्ड इन फोस्टर होम। ओके, चिल्ड्रन ऑफ डाइवोर्स्ड और सेपरेटेड पेरेंट्स। ओके, जो जिनके पेरेंट्स का डाइवोर्स होता है, सेपरेट, और जिनके पेरेंट्स सेपरेट हो जाते हैं, उन बच्चों को क्या होता है, वो बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, स्ट्रेसफुल होते हैं। ओके, एट लीड अ लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट विद वन पेरेंट्स क्रिएट अ इकोनॉमिक hardship and increase the conflict between the parents. For all these reasons, so most children have a hard time during the divorce transition because they are not emotionally strong. इफ़ेक्ट क्या क्या होता है आपका, बच्चे लॉस ऑफ एपेटाइट होगी, अपसेट स्टमक होगा उनको, मोर क्राइंग, स्लीपिंग प्रॉब्लम होगी, feel anger, worry when the parents is out of sight and may withdraw, bite or be irritable, and temper tantrum क्या होगा उनमें present होगा, may feel responsible, may hold anger inside, okay, and may become aggressive and angry toward parents he or she lives with, may have more nightmares. Okay, so special need issue in children like means जो आपके फिजिकली, मेंटली, सोशली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन होते हैं, लाइक मेडिकल केयर वी हैव टू प्रोवाइड, बिहेवियरल थेरेपी वी हैव टू प्रोवाइड, मेंटल हेल्थ उनकी चेक कर ली, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती है उनमें, डेवलपमेंटल डिले होता है। मैनेजमेंट क्या करोगे आप, नॉट एक्सपोज चाइल्ड टू कन्फ्लिक्ट बिटवीन द पेरेंट्स। जब अगर पेरेंट्स क्या होते हैं, मीन्स फाइट कर रहे, तो बच्चों को उसमें क्या करना है, हमें दूर रखना है। लिसन टू चाइल्ड एंड प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट एंड चाइल्ड शुड बी रियर टू रिस्पेक्ट द बोथ पेरेंट्स। और हम क्या, एंड द चाइल्ड शुड थॉट दैट बोथ पेरेंट्स आर नाइस पीपल बट सेपरेटिंग बिकॉज ऑफ दे हैव डिफरेंट व्यूज़ अबाउट लाइफ। तो हमें चिल्ड्रंस को क्या करना है, एजुकेट करना है, उनकी काउंसलिंग करनी है, उनको मोटिवेट करना है। ओके, प्रिवेंशन कैसे करेंगे हम, प्राइमरी प्रिवेंशन जैसे कि हमने बता दिया, हमें जेनेटिक काउंसलिंग करनी है, स्क्रीनिंग करनी है इफ़ एनी एबनॉर्मलिटी इज़ देयर, प्रेगनेंसी प्लानिंग करनी है, RH इनकम्पैटिबिलिटी, इम्यूनाइजेशन देना है मदर और बेबी को ताकि बच्चे में क्या ना हो, यानी कोई प्रॉब्लम अकर ना हो, विटामिन A प्रोफाइलेक्सिस देना वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ मदर एंड चाइल्ड। ओके, सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या करना है, हमें केयरफुली हिस्ट्री लेनी है, रेगुलर मेडिकल चेकअप करवाना है, हमें ट्रीटमेंट करना है पर्टिकुलर हैंडीकैप्ड कंडीशन का। अगर मेंटली हैंडीकैप है तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन वी हैव टू प्रोवाइड ट्रीटमेंट टू द चिल्ड्रन, एंड फिजियोथेरेपी एंड एक्सरसाइज टू इम्प्रूव फिजिकल कंडीशन, एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी वी हैव टू प्रोवाइड। ओके, स्पीच थेरेपी देनी है, प्रोस्थेटिक्स लगाने हैं आपको, काउंसलिंग एंड गाइडेंस करना है, रेफरल फॉर वेलफेयर सर्विसेज, रिहैबिलिटेशन ऑफ हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन, मेडिकल रिहैबिलिटेशन होता है आपका, सोशल रिहैबिलिटेशन होता है, एजुकेशनल, साइकोलॉजिकल एंड वोकेशनल रिहैबिलिटेशन। ओके, so kids with disability are just kids and play, learn and grow together, means हमें उनको ऐसे नहीं करना कि मेंटली रिटार्डेड है तो हमें उसके साथ क्या करना है, मिसबिहेव करना है या पार्शियलिटी करनी है, नो, बिकॉज किड्स आर किड्स। ओके, अगर उनके अंदर डिसेबिलिटीज़ भी है उसके बाद भी वो क्या है, किड्स ही हैं, तो हमें उनके साथ प्ले करना है, लर्न करना है एंड ग्रो टुगेदर। ओके, thank you so much for listening.